Good evening, students. Today we will continue that chapter number 1 of history, rise of nationalism in Europe, and we will start with point number 3, the age of revolutions 1830 to 1848. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, provinces of the Ottoman Empire, Ireland, and Poland. Conservative regimes tried to consolidate the. We saw what was conservative, that they wanted changes but at a slow pace. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolutions in many regions of Europe. So, in many regions of Europe, for a revolution for liberalism started, such as Italian and German states, provinces of the Ottoman Empire, Ireland, and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. Now, who participated most in this? So they were supported by the liberal nationalists, those who wanted to be liberal free, and they were the nationals also. But they were who? Which class of the society? It was the educated middle class elite. Elite means the persons of the highest class in the society, we can say. So they joined them. Among whom and who were they? They were the professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes, the business people, we can say. The first upheaval took place in France in July 1830. Upheaval, yesterday we have seen the disturbance, the violent disturbance, we can say, took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. Yesterday we saw Bourbon king was they were established there, restored to power, but the conservatives, after the conservatives reaction, they were overthrown. Again they were overthrown by the liberal revolutionaries, and there a constitutional monarchy with Louis Philippe as the monarch, but with a constitution. They, it was like system was developed there or established. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. So Metternich once remarked that when France sneezes, means any action by France, the rest of Europe catches cold. The reaction is there in the whole Europe. This is what it is going to say, like that. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. And the July Revolution sparked means instigated uprising in Brussels, started uprising in Brussels, which led to Belgium, and as a result Belgium broke away from the United Kingdom of the Netherlands. An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. The event which mobilized means instigated or spread the nationalist feeling among the educated elite across Europe, throughout the Europe, was the Greek War of Independence. This was the main event, we can say, which started or mobilized or spread the nationalist feeling. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. From 15th century it was a part of Ottoman Empire. The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. And seeing the Europeans active in revolutionary nationalism, जब उन्होंने देखा कि यूरोप अपने आप को फ्री करना चाहता है, रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, क्रांति हो रही है, नेशनलिज्म के लिए आवाज़ उठ रही है, तो उन्होंने भी सोचा, ग्रीस ने भी सोचा कि हम भी इंडिपेंडेंस की, अपनी लिबर्टी के लिए कदम उठाएं, और स्ट्रगल स्टार्ट हुआ 1821 में. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. अब ग्रीस को सपोर्ट मिला, उनके जो देशवासी थे या उनके नेशनलिस्ट जो सपोर्टर्स थे, जो ग्रीक से दूर रहते थे देश निकाले के कारण, और दूसरा वेस्ट यूरोपियंस जो
उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। एंशियंट ग्रीक कल्चर के प्रति उनको सहानुभूति थी, संस्कृति, ग्रीक संस्कृति का वो सम्मान करते थे, तो उनका भी सपोर्ट वेस्ट यूरोपियंस का भी उनको मिला। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और पोएट्स और आर्टिस्ट जो थे, लॉर्डेड का मतलब होता है वो उनके लिए मीन्स सहानुभूति रखते हैं, एज द क्रेडल। और सहानुभूति रखने के कारण वो ऐसा मानते हैं कि जो ये ग्रीस है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो वो क्रेडल के मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट वो वहाँ का था। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। और लोगों ने, यूरोपियंस ने उसको साथ दिया, मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन स्प्रेड किया लोगों के बीच में, टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल, उनका जो ये संघर्ष था अगेंस्ट, के विरुद्ध, मुस्लिम एम्पायर के विरुद्ध, और उन मुस्लिम एम्पायर से उनको मुक्ति चाहिए, इसके लिए सबने उनकी मदद करी। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, और इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन है, ऑर्गेनाइज फंड्स मीन्स उसने पैसा इकट्ठा किए, एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और बाद में युद्ध में भाग लेने के लिए, लड़ने के लिए भी हो गया। वेर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, लेकिन 1824 में मौत हो गई उसकी बुखार के कारण। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो 1821 से जो शुरू हुई संघर्ष गाथा उनकी, 1832 में एक ट्रीटी ऑफ, एक समझौता हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल का 1832 में, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक का मतलब ऐसे लव का भी होता है, लेकिन यहाँ पे रोमांटिक का मतलब है फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन, और उसके द्वारा नेशनल फीलिंग जगाई गई। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो युद्ध और अपने टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए जो संघर्ष होते थे, युद्ध होते थे, सिर्फ उससे डेवलपमेंट नहीं हुआ नेशनलिज्म का, बल्कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। कल्चर यानी कि जो संस्कृति होती है उसने भी एक महत्व की भूमिका बजाई आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, कि एक राष्ट्रीय भावना या एक राष्ट्र की भावना जगाने में उसने भी मदद करी। अब कल्चर मीन संस्कृति में क्या क्या आता है, तो आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो ये हम बोलते हैं लिटरेचर का फॉर्म है, जैसे आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज़ है, म्यूज़िक है, उन्होंने राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए और व्यक्त करने के लिए भी लोगों को मदद करी। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. अब रोमांटिसिज्म किस तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जगाता है, फीलिंग जगाता है, वो हम देखेंगे। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे और पोएट्स थे, जनरली मीन्स आमतौर पे वो क्रिटिसाइज मीन्स नेगेटिव विचारधारा रखते थे द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। तो आधुनिकीकरण, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड रीज़न और साइंस पे टिका हुआ है, तो उसका रीज़न और साइंस का जो ग्लोरिफिकेशन होता था या उनकी प्रशंसा की जाती थी, उसके वो विरुद्ध थे। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, फिगर 8, इसके बारे में। द मैसेकर एट कियोस, यूजेन डेलाक्रॉइक्स 1824। यू कैन सी द फिगर। तो ये डिस्क्राइब करता है द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉइक्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटर था। दिस ह्यूज पेंटिंग 4.19 meters into 3.54 meters depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of Chios। 20,000 ग्रीक्स की हत्या कर दी गई थी टर्क्स के द्वारा। बाय ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट, और इसी का एक फ़ोटो तैयार किया, फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब लोगों की मौत के बाद उनकी स्त्रियाँ, उनके बच्चों की जो सफरिंग थी, उनकी जो तकलीफ़ें थी, वो इस पेंटिंग में दर्शाई गई है। एंड यूजिंग विविड कलर्स, और अलग अलग तरीके के कलर्स यूज़ करके डेलाक्रॉइक्स सॉट टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स। तो डेलाक्रॉइक्स से जो स्पेक्टेटर्स, जो देखने वाले होंगे इस
फिगर को या इस पेंटिंग को उनकी भावनाओं को जागरूक करता है। एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स, और ग्रीक्स के लिए सहानुभूति पैदा करती है ये फिल्म। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग, और साइंस और रीज़न को छोड़ के किन बातों पे फोकस किया उन्होंने नेशनल लिबरलिस्ट ने? इमोशंस, फीलिंग्स पे, इंट्यूशंस पे उन्होंने, इंट्यूशन मीन्स जो अपने आप हम लोग बोलते हैं इनसाइट पैदा होती है हमको, दीर्घ दृष्टि हम लोग बोलते हैं, या सच्चाई का हमको जैसे पहले से पता चल जाता है उसके बारे में हम लोग इंट्यूशन बोलते हैं। एंड मिस्टिकल फीलिंग, मिस्टिकल का मतलब है रिलेटिंग टू सुपर नेचुरल अफेयर्स, सुपर नेचुरल मीन्स स्पिरिचुअल अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। और उनके जो एफर्ट्स थे वो क्या क्रिएट करना था, उनको क्या करना था कि कलेक्टिव हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब धरोहर होती है, एक जो धरोहर है यानी कि जो संस्कृति है, धरोहर है, वो कलेक्टिव है, एक मिली जुली हुई है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। कॉमन कल्चरल पास्ट, और जो उनका सांस्कृतिक पास्ट है, कल्चरल पास्ट है, वो भी कॉमन है। एज द बेसिस ऑफ अ नेशन, इसीलिए उनको एक होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, एक नेशन स्टेट बनना चाहिए। अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people, Das Walk। तो उसने बोला था दास वॉक की तरह, यानी कि उसका मीनिंग दिया गया है कि फोक सॉन्ग्स यानी कि फोक पोइट्री, फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स के द्वारा जर्मन कल्चर को डिस्कवर किया जाता है, यानी कि जो खो गया अभी मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, वो सब फोक यानी कि लोकगीत, लोक काव्य और लोक नृत्य हम लोग जो बोलते हैं, उनमें इनको ढूंढा जा सकता है। वहाँ पर ये जो कल्चर है, पुराना कल्चर है, वापस से मिल सकता है। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉक्सगेस्ट वॉज पॉपुलराइज, द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉक्सगेस्ट वॉज पॉपुलराइज, कि फोक का सहारा लिया जाए, फोक पोइट्री, फोक डांस और फोक सॉन्ग्स का। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसीलिए अगर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना है तो फोक कल्चर का सहारा लेना पड़ेगा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक काव्यों का सहारा लेना पड़ेगा, तो पुराने कल्चर को वापस से जीवित करना पड़ेगा, और उसी तरह से ये देश फिर से यूनिफाइड हो सकता है या नेशन स्टेट बन सकता है, फ्रीडम मिल सकता है। Emphasis on vernacular language, vernacular means traditional language, and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit। तो ये जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है या फोकलोर है, पोएम, सॉन्ग्स, डांसेस वगैरह, उसका सिर्फ यही मतलब नहीं है या सिर्फ इसीलिए नहीं है कि एंशियंट नेशनल स्पिरिट को जगाया जाए, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु आर मोस्टली इलिटरेट। तो जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है, आधुनिक राष्ट्रीय संदेश है, वो काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है, लार्ज ऑडियंसेस तक पहुंचाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो इलिटरेट थे, अज्ञान थे, अनपढ़ लोग थे बहुत सारे। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और ख़ास करके पोलैंड की स्थिति ऐसी ही थी, विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसको विभाजित कर दिया था, अलग कर दिया था 18th सेंचुरी में बड़ी सत्ताओं ने, जैसे रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, पोलैंड एक स्वतंत्र रीजन के तौर पे या स्वतंत्र एरिया उसका नहीं है आज, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, लेकिन जो उनकी राष्ट्रीय भावनाएं उनको एक्टिव रखा था, अलाइव रखा था म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा। Karol Korpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music। तो कैरोल कर्पन्स्की जो था वो नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करता था, एंजॉय करता था अपने ओपेराज और म्यूज़िक के साथ। टर्निंग फोक डांसेस इनटू द पोलोनाइज एंड माजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, डांसेस को पोलोनाइज करता था और माजुरका को नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, भाषा ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स जगाने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन
द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। रशिया ने जब पोलैंड का कब्जा किया तो फिर पॉलिश लैंग्वेज को फोर्सफुली बंद कर दिया गया या उसका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया आउट ऑफ स्कूल्स में से। एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज एवरीवेयर, और सभी जगह रशियन भाषा का उपयोग हो ऐसा कहा गया। इन 1831 एन आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। 1831 में रशियन रूल के खिलाफ, रशियन लैंग्वेज के यूज़ के खिलाफ, रशिया के राज के खिलाफ एक आर्म रेबेलियन मीन्स लोगों ने सशस्त्र क्रांति करी, पर जिसको अल्टीमेटली फाइनली उसको दबा दिया गया, उसको क्रश कर दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। तो इसके कारण फॉलोइंग दिस, इसके बाद जो क्लर्जी यानी कि हाईएस्ट ग्रुप हम लोग जैसे बोलते थे, चर्च से रिलेटेड होते थे पोलैंड के, बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज, वो शस्त्र की तरह यूज़ करने लगे लैंग्वेज का, पॉलिश लैंग्वेज का, एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो एक राष्ट्रीय रेजिस्टेंस मीन्स विरोध करने के लिए वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, अब अपने चर्च गैदरिंग्स के लिए चर्च में इकट्ठा होते थे तब पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, और जो भी धार्मिक सूचनाएं मिलती थी वो सब उसी उसमें पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ होता था। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन ऑथोरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। इसके कारण बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप्स जो होते थे, जो चर्च के मुखिया होते थे, उनको जेल में डाल दिया गया या तो साइबेरिया भेज दिया गया, क्योंकि रशियन अथॉरिटीज़ नहीं चाहते थे कि रशियन लैंग्वेज का यूज़ ना हो और पॉलिश का यूज़ हो। तो एक पनिशमेंट की तरह, एक दंड की तरह क्योंकि वो लोग ने रशियन में अपने धर्म का प्रचार करने से मना कर दिया, इसलिए उनको या तो जेल में भेज दिया गया या तो साइबेरिया भेज दिया गया। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इसलिए हम बोल सकते हैं पॉलिश लैंग्वेज जो है वो पोलैंड के लोगों ने रशियन डोमिनेंस मीन्स रशियन का जो आधिपत्य था उसके खिलाफ अपना संघर्ष जारी करने के लिए, संघर्ष दिखाने के लिए अपनी लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ किया। तो लैंग्वेज एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल की तरफ बाहर आई। 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो साल था और उसके आजू बाजू के जो साल थे, इकोनॉमिक मीन आर्थिक संकट था यूरोप में बहुत बड़ा। द फर्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप मीन्स 1801 से 1850 तक हम लोग बोल सकते हैं कि यूरोप में सब जगह आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, और आबादी बढ़ने के कारण, लोगों के बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट के चांसेस होते थे, लेकिन उससे ज़्यादा तो एम्प्लॉयमेंट लेने वाले लोग थे, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। जैसे हम देखते हैं माइग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, गांव में तकलीफ़ होती है, पैसे नहीं होते हैं, गरीबी होती है, तो लोग, और काम नहीं होता है तो लोग काम के लिए सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर उनको झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो स्लम्स ओवर क्राउडेड होते हैं, वही कंडीशन उस टाइम पे थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। और हमने देखा कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था, जिसके कारण मशीन गुड्स पैदा होते थे, जो हाथ से, जो हैंडमेड गुड्स होते थे उससे वो चीप होते थे क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होता था एक साथ। तो वो इंग्लैंड के जो गुड्स थे, तो टाउन के जो सिटीज़ के जो प्रोड्यूसर्स थे, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, उनको स्पर्धा का सामना करना पड़ता था, बहुत कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता था, और इंग्लैंड का माल सस्ता होता था और इनका माल महंगा होता था, तो इसीलिए उनको माल बेचने में बहुत दिक्कत होती थी। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ख़ास करके जो पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो टेक्सटाइल सेक्टर में, कपड़े के सेक्टर में हुआ था। कपड़ा बनाने की जो मशीन्स थी वो बनी थी, तो इसी कारण टेक्सटाइल प्रोडक्शन में बहुत कठिन स्पर्धा होने लगी। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। और जो यहाँ पर बनाते थे लोग यूरोप में, वो तो घर में बनाते थे कपड़ा। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो मशीन्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती थी, हाथ से काम हुआ करता था हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स होते थे, और पार्टली मैकेनाइज्ड, मशीन्स का बहुत कम यूज़ होता था, इसलिए प्रोडक्शन कम होता था।
इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एन्जॉयड पावर। और यूरोप के वह प्रदेश या वो एरियाज जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी, हमने देखा था कि हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी जो होता था उनके पास पावर था, उनके पास सत्ता थी। पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। तो राजा को जो कर देना था, गवर्नमेंट को जो कर देना होता था और उनके प्रति जो उनको काम करने पड़ते थे, उनका जो बोझ है उसके नीचे वो आ गए और संघर्ष करना पड़ा। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। और अगर इसके फूड के खाने पीने की चीज़ों के भाव बढ़ जाए, ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट या खेती फेल हो जाए, जैसे क्रॉप्स फेल हो जाए, इस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं लेट टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है स्टेट और कंडीशन ऑफ अटर पॉवर्टी। बहुत ही गरीबी फैल जाती थी उस टाइम पे इन टाउन एंड कंट्री, शहर में भी और गांव में भी। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। और 1848 का जो साल था वो ऐसा ही एक साल था। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। तो पेरिस के लोग खाने की कमी के कारण और हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण बहुत सारे लोग पेरिस में रोड पर उतर आए। बैरिकेड्स वर एरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। बैरिकेड्स, उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए और लुइस फिलिप जो उनका नेता था उसको वहाँ से भाग जाना पड़ा। इधर स्ट्रगल का दिखा सकते हैं फोटो, पीजेंट्स अपराइजिंग 1848, जो लोग रास्ते पे उतर आए थे पेरिस में, उसका ये फिगर दिया है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। तो इसके कारण एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर की गई रिपब्लिक की, ग्रांटेड सफरेज, सबको इलेक्शन के राइट्स दिए गए अडल्ट मेल्स को अबाउट 21, एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और सबको काम मिलेगा ऐसा गारंटी दिया गया। नेशनल वर्कशॉप, और राष्ट्रीय स्तर पे वर्कशॉप्स बनाई गई टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स, रोजगारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे वर्कशॉप्स, छोटी छोटी फैक्ट्रीज का बनना शुरू हो गया। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led to a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. तो 1845 में सिलेसिया के जो वीवर्स थे तो हैड लेड अ रिवोल्ट, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स जो उनको पेमेंट देते थे, माल खरीदते थे कॉन्ट्रैक्ट पे। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, वो उनको रॉ मटेरियल कच्चा माल देते थे और उनसे गुड्स बनवाते थे। एंड गिव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल्स, कपड़ा बन के तैयार होता था वो उनका ऑर्डर होता था। बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, लेकिन पेमेंट्स बहुत कम देते थे। ड्रास्टिकली मीन्स एक्सट्रीमली, वेरी मच लो पेमेंट्स वर गिवन। द जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। और जो जर्नलिस्ट पत्रकार विल्हेम वोल्फ था उसने सिलेसियन विलेज में जो देखा, जो घटनाएं हुई, इवेंट्स हुए, उनको इस तरीके से कुछ बताया है। इन दिस विलेजेस विद 18,000 इनहेबिटेंट्स, तो ऐसी इस प्रकार के जो गांव थे 18,000 जिसकी आबादी थी। कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, वहाँ पे कॉटन वीविंग का काम मेन था। मिजरी ऑफ द वर्कर्स, मिजरी मीन्स बैड कंडीशन उनकी वर्कर्स की थी, इज़ एक्सट्रीम, बहुत ही ख़राब परिस्थिति में। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, और काम की ज़रूरत थी, बेरोजगारी थी, तो उसका फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया। टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर, और जो तैयार माल होता था उनका वो बहुत ही कम दाम उनको देते थे, बेरोजगारी का फ़ायदा वो उठाते थे। ऑन 4 जून एट 2 PM, तो 4 जून को 2 बजे दोपहर को, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेयर्स अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और मार्च मीन्स उन्होंने आगे कुछ किया, कदम बढ़ाए अपने। उधर मैंशन, जो बड़ा मकान था, हम लोग पैलेस लाइक एक घर होता है, महल जैसा घर होता है, मैंशन बोलते हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ पर डिमांड करने के लिए कि ज़्यादा पैसे उनको दिए जाए, हायर वेजेस उनको दिए जाए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉन, तो उनको धुतकारा गया, एंड थ्रेट्स, और धमकाया गया, ऑल्टरनेटली उनको धुतकारा गया, धमकाया गया।
फॉलोइंग दिस, और इसी कारण अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, भीड़ में से कुछ लोग घर के अंदर घुस गए, स्मैश इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, और उसकी जो ब्यूटीफुल विंडो पेन्स थी, खिड़कियाँ वगैरह थी जो बहुत ही अच्छी तरह से बनी हुई थी, उनको उन्होंने तोड़ दिया। फर्नीचर, पोर्सलेन फर्नीचर ख़राब कर दिया। पोर्सलेन मीन्स सिरामिक से बनी हुई जो चीज़ें होती थी, आर्टिस्टिक चीज़ें होती थी, वो सब तोड़ फोड़ दी। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, एक दूसरा जो ग्रुप था वो स्टोर हाउस में चला गया। एंड प्लंडर्ड इट ऑफ इज सप्लाईज ऑफ क्लॉथ, और प्लंडर्ड का मतलब उसको लूट लिया, रॉब कर लिया, मीन्स लूट लिया जो माल सामान वहाँ पर रखा था। वैल्यूएबल्स थे, बहुत कीमती सामान जो रखा था वो सब लूट लिया वहाँ से। विच दे टोर टू श्रेड्स, और जो कपड़ा था वो उन्होंने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, जो कॉन्ट्रैक्टर अपनी जान बचाने के लिए अपने फैमिली के साथ एक बाजू के गांव में, पड़ोसी गांव में भाग गया, पर गांव वालों ने उसको शरण देने से मना कर दी। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, लेकिन वो 24 घंटे के बाद वापस आता है। हैविंग रिक्वेशन द आर्मी, रिक्वेजिशन मीन्स आर्मी वालों को, आर्मी की मदद उसने ली, आर्मी को रिक्वेस्ट करी उसे बचाया जाए, उसके घर को बचाया जाए, तो आर्मी की मदद से वो वापस आया। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड, और इस कारण जो संघर्ष हुआ आर्मी और वो उनके वर्कर्स के बीच में, 11 वीवर्स वर शॉट, तो 11 वीवर्स को मार दिया गया, शूट कर दिया गया। 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Now we will continue tomorrow the next lecture. Homework is being given, but hardly anybody is completing, so please complete the homework as given. 15 objective type questions only you have to prepare, no big questions are there. Go through the lecture again and again, and if any difficulty you can contact me. Have a nice day. Thank you. Take care.